Campaigning is in full swing in the state of Bihar, which is gearing up for the first phase of polls on 6th of November. Our group editor-in-chief, Navika Kumar, spoke exclusively to Home Minister Amit Shah, who's holding back-to-back rallies in the poll-bound state. In this exclusive conversation, Home Minister Amit Shah, who is often regarded as modern-day Chanakya and master strategist, predicted more than 160 seats for the NDA. He further claimed that NDA's tally could even go up to 180. Amit Shah also took pot shots at the Mahagathbandhan, saying there is all-out infighting in the opposition camp, with no clarity really on who the final candidate of the Grand Alliance is on several seats. आपको लगता है कि तेजस्वी जी जो पिछली बार 111 सीट लेकर आए थे, बिल्कुल नजदीक थे, जिसको कहते हैं मिस्ड बाय अ विस्कर, इस बार दावेदार नहीं है मुख्यमंत्री की पोजीशन के लिए? हम 160 से ज्यादा सीटें जीतकर बिहार में सरकार बनाएंगे। आपको पहले से पता है तो लोग कहेंगे कि आपको इलेक्शन कमीशन को आप कंट्रोल करते हैं, इसलिए आपको नंबर पता है। अगर मैं 160 से ज्यादा कहता हूं, 180 भी हो सकती है। मैं तो 160 से ज्यादा कहता हूं, 160 नहीं कहता हूं इतना। और मैं हर चुनाव में आकलन अपना कहता हूं। मैं ये भी पूछना चाहती हूं कि आपने बार बार इशारा किया है इस तरफ कि कहीं ना कहीं समन्वय में कुछ प्रॉब्लम है आरजेडी और कांग्रेस पार्टी में, तेजस्वी और राहुल गांधी में। आपको लगता है? प्रॉब्लम नहीं है, सर फुटबॉल की लड़ाई है। ये बिहारी शब्द है, सर फुटबॉल लड़ाई। कैसे कह सकते? देखिए, पर्चा डालने के अंतिम दिन तक पहले चरण का उनका प्रत्याशी ही घोषित नहीं हुआ। आज भी कई सीटों पर मतदाता को ये मालूम नहीं है कि महागठबंधन का ऑफिशियल प्रत्याशी कौन है। 11 सीटों पर फ्रेंडली फाइट है। 11 से ज्यादा सीटों पर जहां सिंबल नहीं है वहां पर भी इनके प्रत्याशी खड़े रह गए। लगभग 62 सीटों पर है। 62 सीटों पर। Now viewers, Home Minister Amit Shah's this interview has sent political ripples. In this interview, Amit Shah predicted a big victory for the NDA, estimating more than 160 seats in the upcoming elections. These comments have sparked a political debate, with Congress MP Imran Masood returning to his familiar vote chori narrative, claiming the BJP could engage in vote manipulation. And Imran Masood has also questioned whether Home Minister's confidence stems from a potential EVM controversy. Listen in. पता नहीं ये एंटी इनकम्बेंसी उनके काम से खत्म हो रही है या ईवीएम से खत्म हो रही है, क्योंकि जो वोट चोरी का मुद्दा है वो तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो छोटा मुद्दा नहीं है। और अगर होम मिनिस्टर साहब इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, क्योंकि पहले भी उन्होंने कहा था 303 सीट आएंगी, 303 ही आ गई थी, तो फिर तो ये सवाल या निशान कहीं ना कहीं खड़ा होगा ना। हम तो इतने बड़े ज्योतिष हैं नहीं कि हम ये भविष्यवाणी कर दें कि हमें 185 सीट आएंगी। Let's go across to my colleague Arunil, who is joining us live right now for more on this. Arunil, good morning. We thought we were really moving away from this vote chori narrative of the opposition in Bihar, with RJD taking the center stage and talking about more, common man issues really in this poll season. But now Imran Masood is back to that vote chori narrative. Well, Home Minister Amit Shah is bound to give out numbers. This is generally being done to motivate and inspire the party cadre as well as the candidates who are contesting the elections as well. Before any election, state election or Lok Sabha as well, Home Minister Amit Shah has given his predictions. In fact, Tejasvi Yadav has also been buoyant about it. Tejasvi Yadav himself said that on 14th we are going to win, 18th we are going to be swearing in our government, our cabinet. So here, but the Congress party stance is extremely appalling. Have they given up before the fight itself? Because Home Minister Amit Shah is predicting 160 plus out of 243 total seats. Magic number is 122 in Bihar. When the Congress party is already blaming EVM manipulation, also saying that the BJP indulges in that, and that is why Amit Shah knows about it. It gives a sense that they have already given up the fight in Bihar. Right, Arunil, thank you very much for the moment, for joining us with those inputs on this story. Let's now move on. And viewers, on the question of whether Nitish Kumar is still the CM face of NDA, Amit Shah
sent out a strong message to the opposition, saying that neither the CM's post nor the PM's post is vacant. Listen in. दो तरह के स्टेटमेंट्स आपने किए। आपने कहा नीतीश कुमार हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव के बाद एमएलए तय करेंगे। ये आपका पहले दौर में स्टेटमेंट आया। बाद में आपने कहा आप संवैधानिक प्रक्रिया क्या है? नहीं, प्रक्रिया है, पर आप मैंने बाद में बोला हूं ये प्रोसीजर है। लेकिन आपने बाद में कहा कि सीएम की जगह खाली नहीं है। अगर मैं आपको एज अ जर्नलिस्ट पिछले 17-18 सालों से फॉलो कर रही हूं, तो मैं जानती हूं कि आप कभी झूठ नहीं बोलते। आप नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं कहते हैं, आप सिर्फ इतना कहते हैं कि मुख्यमंत्री की जगह खाली नहीं है। कहीं कोई जगह रख रहे हैं मैनूवर? आप ध्यान से सुनी नहीं है। मैं बोला हूं मुख्यमंत्री की जगह खाली नहीं है और ऊपर प्रधानमंत्री की जगह नहीं है। यहाँ पर नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है, वहां नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है। मैं पूरा वाक्य ही बोलता हूँ, कुछ नहीं छुपाया है। तो ये विपक्ष बार बार संदेह क्यों करता है कि चुनाव के बाद कुछ ऐसा अब उनको झूठी बातें फैलाना है, कौन रोक सकता है जी? Home Minister Amit Shah also slammed leader of opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, over his personal attack on the Prime Minister. He also had a suggestion for the leader of the opposition. Listen in. राहुल जी खास 58 दिन तो यहाँ बिहार में नहीं नजर आए, लेकिन उसके बाद जब आए तो प्रधानमंत्री पे वो हमेशा वार करते हैं। उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं कि प्रधानमंत्री वोट के लिए यहाँ भरतनाट्यम कर सकते हैं, नाच सकते हैं। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा है प्रधानमंत्री बिहार में ऐसे घूम रहे हैं जैसे उनके बेटे का विवाह हो यहाँ पर। ये इस तरह का जो स्तर है बातचीत का चुनाव के दौरान, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए नाविका जी, इस देश में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने तब देश को एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले जो प्रचार नहीं कर सकते थे। जनता में जाकर अपनी पार्टी की बात, अपनी बात, अपने प्रत्याशी की बात नहीं कह सकते थे। तो उसको कांग्रेस के कुछ समर्थक पत्रकारों ने एक फैशन बना दिया कि प्रधानमंत्री प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री क्यों प्रचार न करे? प्रचार कर तो चुनकर आए हैं भाई। प्रधानमंत्री जी की पार्टी की आइडियोलॉजी प्रधानमंत्री से अच्छे तरीके से कौन रख सकता है? जिस सरकार का नेतृत्व प्रधानमंत्री करे, उस सरकार के कामों को अच्छे तरीके से और फ्यूचर रोड मैप को अच्छे तरीके से प्रधानमंत्री से ज्यादा कौन रख सकता है? और चुनाव लोकतंत्र का महोत्सव होता है। लोक संपर्क करना हर पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है। अब कांग्रेस को उसमें तकलीफ है, इसलिए कांग्रेस इस तरह की स्तर बगर की बात करती है। मगर मैं राहुल जी और खड़गे जी को, दोनों को, मुझसे मांगा नहीं है, फिर भी एक मैं सलाह देना चाहता हूं कि जितने चुनाव में मोदी जी के लिए अभद्र भाषाओं का प्रयोग, अभद्र वाक्यों का प्रयोग उनकी माताजी से लेकर मणिशंकर अय्यर ने किया है, हर बार देश की जनता ने भाषा के गंदे दलदल के उपयोग में कमल को बहुत अच्छे तरीके से खिलाया है और इस बार भी यही होगा। So viewers, you heard Home Minister Amit Shah also slamming the